What is the relevance of Indian polity for civil services exam? Why do I call it low hanging fruit for a student? हमें पूरे के पूरे आर्टिकल्स को रटना होगा क्या? Do we need to remember articles randomly? इंडियन पॉलिटी के पेपर का नेचर लॉ से किस तरीके से डिफरेंट होगा? हेलो एवरीवन, PW ओनली IAS आपके लिए महाकुंभ के इस पावन अवसर पर प्रयागराज में 23 दिसंबर से इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम का नया बैच लेकर आ रहा है। इंग्लिश मीडियम की बैच इंडियन पॉलिटी की क्लास से लॉन्च होगी और इंग्लिश मीडियम की बैच को मैं शुरू करूंगा। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में स्ट्रैटेजी अबाउट इंडियन पॉलिटी, स्ट्रैटेजीज रिलेटेड टू इंडियन पॉलिटी, and we will also be discussing about the relevance of Indian polity in civil services exam. So our batch will start on 23rd of December this month. हमारा बैच शुरू होगा और बैच की टाइमिंग होगी इन द इवनिंग. You can get the information about the batch from our office. Now let us discuss about the finer points of Indian polity and how we are going to proceed in this batch with respect to Indian polity. So it is a comprehensive batch that will cover all aspects of prelims as well as mains. So it's a prelims cum mains batch. यहाँ पर prelims और mains दोनों की integrated fashion में तैयारी करवाई जाएगी. Now let us discuss about the relevance of Indian polity for civil services exam and how we are going to proceed in Indian polity, how I will be tackling the subject and how I will be taking up the subject in an integrated fashion that will cover both aspects of mains as well as prelims. Aspects of mains as well as prelims will be covered in integrated fashion. So let us discuss about first the relevance of Indian polity for civil services exam. What is the relevance of Indian polity for civil services exam? Though Indian polity as such is not more important than any other subject, Indian polity is equally relevant as compared to any other subject. But its relevance lies in the fact that you will be studying Indian constitution, aspects of Indian polity in detail that will give you greater idea about civil services exam, that will give you greater idea about the working of bureaucracy. So in civil services exam, Indian polity, it sets the tone of entire preparation. In prelims question paper, you get around 15 questions from Indian polity itself. I often say that these 15 questions are sort of low-hanging fruit for a student. Why do I call it low-hanging fruit for a student? Because the kind of questions which they are asking here, it is different from law background. It is different from LLB or LLM. It is precisely related to the demands of the exam. It is precisely related to general working of the government. So Indian polity in prelims, it covers around 15-16 questions directly, and in mains exam in paper 2, almost half of the paper directly comes from Indian polity itself. It means that in mains exam, it covers 100 papers, 100 marks paper directly, and in prelims exam, 15 to 20 question. It means 15 to 20% of the paper, it consists of Indian polity. And generally, I call it low-hanging fruits because the kind of questions which they ask in Indian polity are doable questions. They are not impossible ones. Those questions can easily be tackled, provided if you have got conceptual clarity. So now let us discuss about the strategy, how we are going to proceed with respect to Indian polity for our batch. So this is also a strategy video with respect to Indian polity, because generally there is a lot of misconception with respect to Indian polity. Students के दिमाग में हमेशा ये misconception रहता है कि क्या इंडियन पॉलिटी की तैयारी में हमें, पहला मिसकंसेप्शन उनके दिमाग में होता है कि हमें पूरे के पूरे आर्टिकल्स को रटना होगा क्या जब हम इंडियन पॉलिटी की पढ़ाई कर रहे होंगे. फर्स्ट मिसकंसेप्शन in their mind. Do we need to remember articles? और हमेशा स्टूडेंट
मुझसे ऑनलाइन क्लासेस में, ऑफलाइन क्लासेस में ये पूछते हैं दैट डू वी नीड टू रिमेंबर आर्टिकल्स और डू वी नीड टू रिमेंबर आर्टिकल्स रैंडमली। सेकेंड क्वेश्चन में से स्टूडेंट पूछते हैं अबाउट केस लॉस, कि किस टाइप के केस लॉस और कितने डिटेल में हमें केस लॉस को पढ़ने की आवश्यकता है। ये दूसरा क्वेश्चन में से स्टूडेंट पूछते हैं। और तीसरा क्वेश्चन में से स्टूडेंट पूछते हैं कि इंडियन पॉलिटी के पेपर का नेचर लॉ से किस तरीके से डिफरेंट होगा। तो डिफरेंस बिटवीन पॉलिटी सब्जेक्ट and law. Now I tell you, you do not need to memorize articles. If you will go through last 25 years of question paper in civil services exam, तो आप realize करेंगे that seldom they ask question directly related to article. Generally they ask question related to some context. एकदम सीधे सीधे वो आर्टिकल कभी आपसे नहीं पूछते हैं। वो आपसे कभी ऐसा नहीं पूछेंगे कि आर्टिकल 335 में क्या लिखा हुआ है, उसके पीछे का कंटेक्स्ट आपको पता होना चाहिए। बेसिकली वो आपसे सीधे सीधे कभी नहीं पूछते हैं कि आर्टिकल 109 में क्या लिखा हुआ है। उन्होंने इस बारी में आर्टिकल 109 पूछा है, लेकिन द क्वेश्चन वाज ऑल अबाउट मनी बिल। और अगर कोई मनी बिल के बारे में जानता है, सो द पर्सन मस्ट बी नोइंग अबाउट आर्टिकल 109 ऑल्सो, आर्टिकल 110 ऑल्सो, उसको पता होगा प्रिसाइसली। तो क्वेश्चन जब वो पूछते हैं तो वो किसी न किसी कॉन्टेक्स्ट से कनेक्ट करके उस क्वेश्चन को पूछते हैं। तो आपको सीधे सीधे रैंडमली आर्टिकल्स को मेमोराइज करने की आवश्यकता नहीं है। यू डोंट नीड टू मेमोराइज आर्टिकल्स। आपको वही आर्टिकल बेसिकली जानने होते हैं, दोस आर्टिकल्स दैट कम इन कॉन्टेक्स्ट, पहला। दूसरा, आपको किस हद तक केस लॉस को जानने की आवश्यकता है। दैट रिमेंबर देयर आर हार्डली 75 to 100 केसेस which you need to know, and those 75 to 100 cases I will be discussed in the class itself, and those 75 to 100 cases you will keep on referring every now and then. आप जगह जगह पर उसी 75 to 100 केसेस को रेफर करते रहेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम। तो इसलिए होता क्या है कि स्टूडेंट्स अननेसेसरली दे कीप ऑन डिलिबरेटिंग अपॉन द केस लॉस। अननेसेसरली आपको केस लॉस पे फोकस करने की जरूरत नहीं है। You need to look at only those case laws which are relevant from exam point of view. स्टूडेंट एक दूसरी गलती ये करता है कि वो किसी भी केस लॉस में, केसेस में बहुत डिटेल में पढ़ने की कोशिश करता है। यू ओनली नीड टू नो द फाइनल जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, दैट्स इट। उससे ज्यादा आपको कुछ नहीं जानने की आवश्यकता है। सो अननेसेसरली यू शुड नॉट बी फोकसिंग टू मच अपॉन केसेस। You need to know about only the final judgment of Supreme Court that can be quoted in your paper. So basically जब आप केस लॉस का इस्तेमाल करते हैं तो अपने आर्गुमेंट्स को सब्सटेंशिएट करने के लिए करते हैं। तो एक पहला मिसकंसेप्शन है कि हमें आर्टिकल्स रटने होते हैं इंडियन पॉलिटी में। नहीं, आपको आर्टिकल्स रटने नहीं होते हैं। यू नीड टू नो द आर्टिकल्स इन कंटेक्स्ट। अगर वो कंटेक्स्ट में आर्टिकल नहीं है तो इट्स अ फ्यूटाइल एक्सरसाइज, यू विल नॉट बी एबल टू मेमोराइज इट। इफ यू वांट टू मेमोराइज इट, यू नीड टू मेमोराइज इट in the context, और context में जब वो article आता है तो automatically you will be memorizing it. For example, this year they asked question related to article 109. अभी वो मनी बिल के प्रोसीजर से रिलेटेड है, the way money bill is being passed, वो प्रोसीजर से रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब ये एक ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि इसके लिए आपको आर्टिकल को स्पेसिफिकली रटने की जरूरत होगी। When you will read money bill, तो ऑटोमेटिकली आर्टिकल 109 एंड 110 विल कम इन फ्रंट ऑफ यू, और वो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। सपोज अगर आप रैंडमली आर्टिकल 9 को याद करने की कोशिश करते हैं तो चीजें आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएंगी। लेकिन जब आर्टिकल 109 एंड 110 विल कम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मनी बिल, यू विल ऑटोमेटिकली बी मेमोराइजिंग इट। लाइकवाइज सपोज हम आर्टिकल 16 क्लॉज 4 के बारे में बात कर रहे हैं, या सपोज करो कि हम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के बारे में बात कर रहे हैं। तो व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट मेनका गांधी केस, तो मेनका गांधी केस को हमें कितने डिटेल में पढ़ने की जरूरत है। लाइक लास्ट ईयर दे आस्क्ड क्वेश्चन, द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इंक्लूड्स व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग। आंसर वाज प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस।
द पॉइंट इज कि ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा था. आपको मेनका गांधी केस को डिटेल में नहीं जानना है. यू नीड टू नो अबाउट द फाइनल जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है उस पर्टिकुलर केस में. पुट्टा स्वामी केस, राइट टू प्राइवेसी. सपोज पुट्टा स्वामी केस में सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी के बारे में बात किया है. यू डू नॉट नीड टू गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ राइट टू प्राइवेसी. क्वेश्चन में उन्होंने पूछा हुआ है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू राइट टू लाइफ. ये 2024 का क्वेश्चन है. अब क्वेश्चन में आपको इतना ही जानना है पुट्टा स्वामी केस का फाइनल जजमेंट क्या था बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का. तो आपको अननेसेसरली केस लॉज के डिटेल में बहुत ज्यादा नहीं जाना है. यू ओनली नीड टू नो द पॉइंट विच इज रिलेवेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. इफ समथिंग इज नॉट रिलेवेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, यू हैव गॉट नथिंग टू डू विद इट. आई टेल यू, अननेसेसरली आपको किसी भी केस लॉ के डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. तो बेसिकली मैं स्टूडेंट से हमेशा बोलता हूं दैट यू गो थ्रू द क्वेश्चन पेपर फर्स्ट. जो तैयारी करने का आपका तरीका होना चाहिए वो ये तरीका होना चाहिए. 1, सिलेबस. तो टोटल सिलेबस है इंडियन पॉलिटी का, इट इज बेयरली ऑफ 5 लाइन. ये आप अगर 3 बारी 4 बारी पढ़ेंगे लगातार 3 दिन तक तो आपको रट जाता है ये सिलेबस. मतलब लिटरली आपको रट जाएगा, लाइन बाय लाइन आपको पता होंगी कि उस सिलेबस में क्या लिखा हुआ है. कि हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स लिखा हुआ है, एवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, अमेंडमेंट लिखा हुआ है, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है पहले लाइन में. ये आपको इसी तरीके से ऑर्डरिंग में याद हो जाएगा. तो यू नीड टू नो अबाउट द सिलेबस. क्यों सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है? बिकॉज सिलेबस गिव यू फेयर अमाउंट ऑफ आइडिया कि कैसे क्वेश्चन, कौन कौन से टॉपिक्स हैं. लेकिन हमें सिलेबस से बहुत कुछ नहीं पता चलता. इसलिए मैं स्टूडेंट को हमेशा बोलता हूं that you need to go through question papers. Question papers of both prelims as well as mains are important before you start reading Indian polity. अब आप मेरे से कहेंगे कि जब मुझे कुछ पता ही नहीं है तो मैं क्वेश्चन में क्या पढ़ूंगा. आपको कुछ नहीं पता, इसलिए यू नीड टू रीड क्वेश्चन पेपर. बिना क्वेश्चन पेपर पढ़े हुए मान लिया कि आप इंडियन पॉलिटी की पढ़ाई करने जाते हैं तो क्या होगा. आप रैंडमली वहां चीजों को अंडरलाइन करने की कोशिश करेंगे एंड इवन दो यू डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट द टॉपिक यू विल ट्राई टू रैंडमली अंडरलाइन इट. जैसे सपोज कीजिए मैंने आपको क्लास में डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ाया शेड्यूल 7. शेड्यूल 7 में मैंने आपको पढ़ाया स्टेट लिस्ट. स्टेट लिस्ट में मैंने आपको बताया कि स्टेट लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, आइटम्स ऑफ स्टेट लिस्ट, स्टेट कैन लेजिस्लेट बट jurisdiction of a state is not exclusive and even parliament can legislate over the subjects given under a state list. अब वो 5 एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशन है अंडर आर्टिकल 249, 250, 252, 253 एंड 356. इन 5 एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशन में स्टेट लिस्ट में दिए हुए सब्जेक्ट्स पर पार्लियामेंट भी कानून बना सकता है. यहां से 3 बारी क्वेश्चन आया है. आर्टिकल 249, आर्टिकल 253, आर्टिकल 356. यहां से 3 बारी ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है. इनफैक्ट 4 बारी आर्टिकल 250. So basically these are 5 extraordinary conditions जिसमें स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे पार्लियामेंट कानून बना सकती है. जब तुम पुराने सालों का क्वेश्चन देखोगे, सपोज करो कि तुमने क्वेश्चन नहीं देखा है और तुमने इस टॉपिक को पढ़ा, तो तुम रैंडमली पढ़ते हुए सरसरी निगाहों से निकल जाओगे. लेकिन जब तुमने पहले से क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, तुम्हें यह पता है कि आर्टिकल 249 पूछा हुआ क्वेश्चन है, आर्टिकल 250 पूछा हुआ क्वेश्चन है, आर्टिकल 356 पूछा हुआ क्वेश्चन है, आर्टिकल 253 पूछा हुआ क्वेश्चन है. तो तुम्हारा जो दिमाग होगा इट विल बी वेरी मच डायरेक्टेड टुवर्ड्स द डिमांड ऑफ द एग्जाम. मैं हमेशा क्लास में एक बात कहता हूं, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नोइंग थिंग्स एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नोइंग थिंग्स एंड क्लियरिंग द एग्जाम. These two are different things. If you have got a lot of knowledge, it doesn't guarantee you that you will clear the exam. But if you are very smart, you know about the demands of the exam, there are very high chances that you are going to clear the exam. So knowing too much and clearing the exam, these are two different things. These are two disparate things which must not be connected. ये दो अलग अलग बातें हैं जिनको unnecessarily कनेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है. अगर आपने बहुत ज्यादा नॉलेज पर फोकस किया, and if you are not exam centric, I tell you, life will become extremely challenging and extremely difficult for you. So what you need to do is, first you go and memorize the syllabus. Whenever I start my Indian polity class, I urge a student that you don't need to do anything. You just go and memorize the syllabus. For the first 3 days, you just go and read
syllabus again and again and again, and you go through the question papers for both prelims as well as mains. For prelims, you go through last 10 years question paper. For mains, you go through last 7 years question paper. मेंस के लिए 7 सालों का क्वेश्चन पेपर देखिए, प्रीलिम्स के लिए लास्ट 10 इयर्स का क्वेश्चन पेपर देखिए. लास्ट 10 इयर्स में लगभग 150 क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी से पूछे गए. लिटरली ये 150 क्वेश्चन आपके जबान पे होने चाहिए. लास्ट 7 इयर्स में ऑलमोस्ट 70 क्वेश्चन पूछे गए हैं इंडियन पॉलिटी से. ये 70 क्वेश्चन आपके जुबान पर होने चाहिए. आप कहेंगे सर मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, फिर ये क्वेश्चन क्यों जुबान पे होने चाहिए मेरे? इसीलिए क्योंकि आपको कुछ नहीं आता है. अगर आपको कुछ आ रहा होता तो मैं आपको कभी नहीं बोलता कि आप जाकर के इनको देखिए. पहले आपको कुछ नहीं आता है, दैट इज व्हाई यू गो थ्रू क्वेश्चन पेपर. अब जो तैयारी का तरीका हो गया है, इट हैज बिकम स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट यूज्ड टू बी अर्लियर. आज के डेट में पहले क्या होता था? पहले हुआ करता था तैयारी का तरीका कि जिसमें आप कंटेंट पहले पढ़ते थे, कंटेंट फर्स्ट, क्वेश्चंस लेटर. ये पहले तैयारी का तरीका था. आज तैयारी का तरीका क्या है? आज तैयारी का तरीका है क्वेश्चन फर्स्ट. पहले आप क्वेश्चन पढ़ते हैं. क्यों? क्योंकि आपको कुछ नहीं आता है, इसलिए आप क्वेश्चन पढ़ते हैं. उसके बाद आप कंटेंट पढ़ते हैं. जब आप कंटेंट पढ़ रहे होते हैं क्वेश्चन पढ़ने के बाद, तो आपका दिमाग वेल डायरेक्टेड होता है, काम की चीजों पर जाता है. और फिर आप दोबारा से आते हैं, जब आपने कंटेंट पढ़ लिया तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. इस तैयारी में और इस तैयारी में जमीन आसमान का फर्क है. ये जो तैयारी है, ये नॉलेज सेंट्रिक तैयारी है. और जो दूसरी वाली तैयारी है, ये एग्जाम सेंट्रिक तैयारी है. एग्जाम सेंट्रिक और नॉलेज सेंट्रिक तैयारी में देयर इज अ हेल लॉट ऑफ डिफरेंस, आई टेल यू. अब हो सकता है कि सबसे ज्यादा नॉलेजेबल इंसान हो, लेकिन आप एग्जाम ना निकाल पाए. हो सकता है कि आप स्मार्टेस्ट ऑफ द लॉट हैं, आपको एग्जाम के रिक्वायरमेंट के बारे में प्रिसाइजली पता है और आप एग्जाम आसानी के साथ निकाल दे. बाकी बच्चों से बेहतर तरीके से आप एग्जाम निकाल दे. तो बहुत ज्यादा जानना और एग्जाम निकालना, दीज टू आर डिफरेंट थिंग्स. इन दोनों चीजों को अननेसेसरली आपको मिक्स करने की आवश्यकता नहीं है. सो व्हाट यू नीड टू डू इज, you just go through the syllabus before I will be starting your Indian polity topic, and you read syllabus. There are hardly 5 to 6 line in your paper 2, जो आप 3-4 दिन पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाता है, रट जाता है. And then you go through last 10 years question of prelims and last 7 years question of mains. जब आप last 7 years question को पढ़ेंगे मेंस के, तो आपको एक फेयर अमाउंट ऑफ आइडिया लगेगा कि मेरे को बेसिकली करना क्या है. और यहां पर लास्ट 10 इयर्स के अगर आप 150 क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको ये आइडिया लगेगा कि पढ़ते समय मुझे क्या अंडरलाइन करना है. मैं जनरली जब बच्चों की कॉपी देखता हूं पढ़ते समय, वो क्या अंडरलाइन करते हैं. सो मोस्ट ऑफ द टाइम आई फाइंड दैट दे कीप ऑन अंडरलाइनिंग ऑलमोस्ट एवरीथिंग. व्हाई? बिकॉज दे हैव नो आइडिया व्हाट कैन बी आस्क्ड इन द पेपर. ये आइडिया आपको कभी नहीं लगेगा अनलेस यू हैव गॉन थ्रू क्वेश्चन पेपर. इसलिए मैंने आपसे कहा, पहले तैयारी का तरीका क्या होता था? कंटेंट पहले, क्वेश्चन बाद में. ये नॉलेज सेंट्रिक तैयारी है. इसमें तुम्हारे पास नॉलेज बहुत हो जाएगा, लेकिन एग्जाम क्लियर करना इज अ डिफरेंट बॉल गेम. आज के डेट में तैयारी का तरीका क्या है? यू रीड क्वेश्चन फर्स्ट. जब तुम पहले क्वेश्चन पढ़ते हो और फिर जब तुम कंटेंट पढ़ने जाते हो, तो तुम्हारा दिमाग फोकस्ड होता है, तुम्हारा दिमाग वेल डायरेक्टेड होता है. You focus on only those aspects which are relevant from exam point of view. If something is not relevant from exam point of view, तुम उसको डिस्कार्ड कर देते हो, तुम उसमें बहुत ध्यान नहीं देते हो. अब आप कहेंगे कि सर क्या पता जो चीज इस साल में नहीं पूछी गई है वो अगले साल में नहीं पूछी जाएगी. अगर आप लास्ट 20 इयर्स के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो आपको प्रिसाइजली समझ में आ जाएगा कि क्या पूछा जाता है और क्या नहीं पूछा जाता है. सो डोंट वरी अबाउट इट एट ऑल. सो फर्स्ट क्वेश्चन, देन कंटेंट, देन अगेन क्वेश्चन. दैट इज एन एग्जाम सेंट्रिक अप्रोच. So let us meet on 23rd and let us begin our journey of Indian polity. I tell you that it will be a very enjoyable experience for you. We provide the highest possible quality to a student. It will be a very enjoyable journey to you. I can assure you that the day you will sit in the class, you yourself will realize the difference. So I just invite you
to attend our classes starting from 23rd of December at our Prayagraj Center. तो महाकुंभ के इस पावन अवसर पर महाकुंभ भी आने वाला है और हमारा बैच भी शुरू हो रहा है, तो आप एक बारी बैच में आइए, बैच में बैठिए and you will feel the difference. I will tell you that there is a hell lot of difference एग्जाम पास करना और एग्जाम सेंट्रिक अप्रोच होना और बहुत ज्यादा नॉलेज होना. So we will focus upon exam centric approach. We will focus upon questions rather than unnecessary mugging up of information. So that's all about this orientation session. So come 23rd of December to our Prayagraj Center. बाकी सारा information आपको हमारे ऑफिस से मिल जाएगा. So that's all about the orientation session. Thank you.